मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन. السلام عليكم ورحمة الله. لعل الفن كمهمة وكرسالة يميل ويسعى إلى توسيع وتكبير وتظهير ما قد يكون مجبرا أو مرغما على أن يبدو ضيقا وغير مسموع أو مرئي. إنه يكشف عن روح شرسة ومتينة ومدروسة وموجودة بقوة وتستمر في النمو والازدهار في بقعة جغرافية وبين أناس تعرضوا للوحشية لعقود إن لم يكن لقرون، لأن الفن لا بد من أن يكون في تلك الحالة وسيلة للتعبير والمقاومة والتفاعل والتضامن والتكافل والصمود. في كشمير التي تعد واحدة من أكثر المناطق المضطربة في جنوب آسيا اليوم، والتي لا تزال واحدة من أكثر المناطق تسليحا في العالم، حول العديد من الفنانين الكشميريين فنهم إلى أسلحة للمقاومة خلال فترات القمع والعنف المتصاعد من قبل إرهاب الدولة في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. ولأن الفن والموسيقى يتخطيان الحدود واللغات، انبرى الفنانون الكشميريون لإحياء نضال الشعب الكشميري ضد الاحتلال الوحشي لأرضهم من خلال التجارب الشخصية وروايات فنانيها وتعبيرهم الفني المتنوع. بيد أن البعض قد يتساءل عما إذا كان الفن أداة فعالة لاستخدامها عندما يأتي الظالم مسلحا حتى النخاع ومتأبطا نظاما كاملا من القوانين القمعية المفروضة على أهل الأرض لمواصلة اضطهاد أولئك الذين يجرؤون على الاحتجاج والمقاومة. للإضاءة أكثر على هذا الجانب والفن المقاوم من كشمير ولأجل كشمير، يطيب لنا أن نستقبل من ميربور في أزاد كشمير زهيب زمان، الفنان والناشط الاجتماعي والمنشد الوطني، لنتحدث عن أعماله ولنسأله: هل بإمكان الموسيقى اجتياز حواجز اللغة والمنطقة والدين لجعل الناس في جميع أنحاء العالم على دراية بالمأساة في كشمير وحال أهلها ورغبتهم الشديدة في الحرية والتحرير؟ ولماذا اختار زهيب هذا الطريق؟ وما هي رسالته للشباب في كشمير اليوم؟ أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. Zuhaib Zaman, Kashmiri artist, social activist and patriotic singer, joining us from Azad, Kashmir. Welcome to Min al-Dakhil from the inside, Zuhaib. Thank you so much. Pure pleasure to have you always. Well, art and music are born out of the lived experiences of artists and musicians. Zuhaib, you define yourself as not a professional singer. Rather, you sing only for your homeland in Kashmir and for its people and their freedom. Zuhaib, when and how did you start your resistance and patriotic genre of chanting and singing, and why did you choose to pursue this path? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे जो भी सुन रहे हैं और इस आपके इस शो में इनवाइट करने के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो मैंने पेट्रियाटिज़म चूज़ किया अपने वतन के लिए, हर कोई अपनी आवाज़ उठाता है कश्मीर के लिए, लेकिन मेरे पास आवाज़ थी। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए अपनी आवाज़ से उनकी दर्द की आवाज़ बन रहा हूँ। उनकी जो जुल्म व सितम है उनको मैं अपनी आवाज़ से दुनिया को दिखा रहा हूँ। मैं लड़ नहीं सकता, मैं जंग नहीं कर सकता, मैं अपनी आवाज़ से उनका साथ दे सकता हूँ। तो पेट्रियाटिज़म मैंने क्यों चूज़ किया, अपने वतन के तराने पढ़ना क्यों चूज़ किया? वो इसलिए चूज़ किया कि जो इसमें इज़्ज़त है,
जो इसमें मोहब्बत है लोगों की, जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है पूरी दुनिया में से, वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनको बयान कर सकूं। मतलब हर बंदा दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो मैंने इसलिए अपने वतन के तराने पढ़ना शुरू किया, और मैं ये खालिस्तन अपने वतन और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता हूँ। मैं इसका किसी क्रेडिट, पैसे या किसी फेम के लिए मैं इसको हरगिज़ नहीं पढ़ता। मैं खालिस्तन अपने वतन की रज़ा के लिए पढ़ता हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक मेरा दम है मैं अपने वतन के लिए ऐसे तराने और नगमे इंशाअल्लाह पढ़ता रहूँगा। Beautiful. What is the importance of what you do? I mean, the level of interaction and the reaction to your chants and songs that tend to tell the overlooked horrific stories of pain and suffering and agonies of the weeping mothers, of the half widows and half orphans in Indian occupied Kashmir. इसमें ये है कि मतलब मैं जो दिखाता हूँ अपनी आवाज़ से, उनके दर्द को अपनी आवाज़ में जो बयान करता हूँ उसको बाकायदा मैं फिल्माता भी हूँ। उसमें मकबूजा कश्मीर की रोती माऊ बहनों को जो वहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है, जो जुल्म व सितम, बर्बरियत और ज़ालमाना कब्ज़ा, और जो वहाँ पे सफ़ाकाना जो अंदाज़ जारी है, उसको अपनी आवाज़ के ज़रिए बता के उसको फिल्माता भी हूँ और पूरी दुनिया को उसको दिखाता भी हूँ कि ये दुनिया में कश्मीर एक कोना है और उसमें किस हद तक जुल्म हो रहा है। और म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक इसका एक रोल है हर जगह पे। तो मतलब कि ये आप कोई भी जज्बा दिलाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये रूह का सुकून है, लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि मैं एक पेट्रियाटिक आदमी हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियाटिज़म को ही प्रमोट करता हूँ और करता रहूँगा। तो म्यूज़िक भी मेरा जो है वो सिर्फ पेट्रियाटिज़म से रिलेटेड होता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन से रिलेटेड होता है। Right. Music, yes, is considered a global tool for expression and a global language. Art has been used as a form of resistance, and music, of course, is one of these many forms. What do you hope people will learn from your patriotic songs, Zuhaib? And why do you reckon that the art world needs to wake up to the Kashmir occupation and crisis? इसमें ये है कि बेसिकली अभी जो सबसे बड़ा एक सहारा है हमारे पास, वो सोशल मीडिया का है। जो चीज़ सोशल मीडिया में दिखाई जाती है, लोग उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं और उसको आगे बताते भी हैं कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है, जो जिसके पास वसाइल हैं वो उसके मुताबिक अपना रोल प्ले कर रहा है। मेरे पास एक आवाज़ है और मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए ही अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, और दुनिया में कश्मीर के साथ जो भी जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचा रहा हूँ। और इससे ये है कि दुनिया की जितनी भी हमारे हुक्मरान या जो भी UN या जितने भी ममालिक हैं जो सोए हुए हैं, उनको उजागर करने के लिए ये एक लैंग्वेज है म्यूज़िक की, बताने के लिए कि भाई यहाँ पे ये मसाइल हो रहे हैं, यहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं, दुनिया कट रही है, मतलब तबाही मची हुई है और कोई भी वहाँ पे देख नहीं रहा। तो हमारे पास एक सोशल मीडिया ही है जिसके ज़रिए से हम अपना वो पैगाम पहुँचा सकते हैं। मीडिया पे तो उस तरीके से दिखाया नहीं जाता जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है। एक्चुअल कंडीशन जो है वो मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। हकीकत जो है वो वही बंदे जानते हैं जिन पे बीत रही है। Excellent. So you hope your songs could bring to life the Kashmiri people's struggle against the brutal occupation of their land. Who is your lyricist, Zuhaib, and who produces your songs? अच्छा, मैं बेसिकली जो है ना, ये जो आप कह रही हैं ना कि मेरे जो सॉन्ग से कैसे इफ़ेक्ट होगा, ये बेसिकली ये चीज़ है ना कि मैं
अपनी आवाज़ जैसे ही उनके जो शायरी में या जो भी मैं दर्द से पढ़ता हूँ तो कम से कम एक पूरी दुनिया में मैसेज जाता है ना। तो मुझे बेसिकली जो एक इंट्रोड्यूस मैंने खुद ही हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने अपना कौमी तराना पढ़ा था कश्मीर के लिए ही, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। उसके बाद मुझे मुहब्बल वतनी जागी मेरी और मैंने फिर तराने पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन मैंने तराना पढ़ा। फिर मैंने कश्मीर की बाकायदा लैंग्वेज को सीखा, जो कशोर बोली है उसको मैंने बाकायदा सीखा। मैं मीरपुर से हूँ, मेरी जो ज़ुबान है वो पहाड़ी है, मेरी ज़ुबान पूरी प्योर कश्मीरी नहीं है। मैंने कश्मीरी ज़ुबान सीख के जो निगारो चाइन हुस्नन करिन देवान का इत्या मेरा एक तराना है वो मैंने बाकायदा सीख के अपने जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को उन्हीं की ज़ुबान में उनको ट्रिब्यूट पेश की। और ये मेरा जज्बा है उनके लिए, मतलब मेरी ये जो है ना फीलिंग्स हैं और ये मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक मेरी सांसें हैं इंशाल्लाह। Right, allow us to stop and watch one of your video clips. Zuhaib Zaman, patriotic singer from Kashmir. निगारो जाइन सनम करिंदे वान क्या गमोची आशिक पलवा बनित मस्तान क्या निगारो जाइन सनम करिंदे वान क्या गमोची आशिक पलवा बनित मस्तान क्या। Zuhaib Zaman, Kashmiri singer, welcome back. On August 15th, India and Pakistan have celebrated their 75th Independence Day. Yet the Kashmiri people and nation have been deprived of their fundamental right of living in freedom and peace because of the Indian occupation. The Indian forces, of course, are committing war crimes and genocide against the Kashmiris and are using internationally banned weapons that have blinded hundreds in Kashmir, severed communications and banned the internet on many occasions, let alone the police brutality and villages that are pillaged with absolute impunity. What is your message on this occasion, Zuhaib? देखिए 14 अगस्त 1947 ये जो हम आज़ादी का दिन मनाते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में मनाते हैं 15 अगस्त को, हमारी 14 अगस्त को हुई आज़ादी और उनकी 15 अगस्त को। तो जो 14 अगस्त ये दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जो है ना अहमियत का हामिल है। ये दिन बहुत सी जानों की कुर्बानी के बाद ये जो पाकिस्तान है हमारे जो है ना नसीबों में आया है। अगर इसकी तारीख़ पढ़ी जाए तो बहुत सी गर्दनें कटी हैं, बहुत ही लहू बहा है इस वतन को पाने के लिए। तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत से जो महरूम हैं कश्मीरी, उनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और फ़लस्तीन में भी ये चीज़ है। तो ये मेरे ख़्याल से मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि आज़ादी को मैं कैसे डिफ़ाइन करूं कि ये वही जानते हैं जो आज़ाद नहीं है। और जो आज़ाद हैं खुदारा इस आज़ादी की नेमत से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जिनने इस मुल्क को आज़ाद कराया उनके लिए हमेशा दुआ गो रहें। Sure. Some artists strongly introduce the history of their land
to its people as how and when foreign occupation of Kashmir started in 1586 and how people have existed. They, as yourself, Zuhaib, believe that the existence of the people is itself a form of resistance. The youth has always played an important role to strengthen the freedom movement of Kashmir. What's your message to the youth, Zuhaib? जो आजकल की यूथ है उसको, मतलब मैं भी यूथ हूँ, मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालें, उसको बाहर निकाल के पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज़ करें, उसको यूज़ करें। हर इंसान की जो भी मैसेज होते हैं, इंसान का एक नेगेटिव चीज़ होती है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है, तो हमेशा पॉजिटिव रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमारी यूथ आजकल की ज़्यादा नेगेटिव तरीक़ों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही है, वो नेगेटिव रास्ते ज़्यादा इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि उसमें कामयाबी बहुत जल्दी है, उसमें आपको जो है ना लवाज़मात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मेरा यूथ से ये एक छोटा सा मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव रास्ते को इख्तियार करें, अपना पॉजिटिव रोल माशरे में हमेशा अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। उससे इंशाल्लाह ताला आपको जो तरक्की मिलेगी और जो मोहब्बत मिलेगी वो मिलेगी देर से, लेकिन वो सारी ज़िंदगी के लिए रहेगी। तो वो जिसको कहते हैं ना कि अनफॉरगेटेबल, कभी भी ना बुलाई जाने वाली, वो आपकी जो है ना वो कामयाबी बन जाएगी। Okay, we agreed, Zuhaib, that music is a global language. In your opinion, can music traverse the barriers of language, region, and religion to make the people across the world aware about the Kashmir cause? And how important is the use of art as a vehicle to convey the Kashmiri cause? And does it relay the intended message? उसमें ये है कि हम एक पॉजिटिव चेहरा अपने पाकिस्तान का या कश्मीर का दिखाएं, ना कि देखें पाकिस्तान बहुत जो है ना अभी सरवाइव कर रहा है, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमारा जो मुल्क है, कश्मीर भी उसी में ही है जो हमारा आज़ाद कश्मीर है। तो मकबूजा कश्मीर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जुल्म और सितम तो हम दिखाते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन अगर हम जो दुनिया जो है ना तंग पड़ चुकी है वो चीज़ें देख देख के, तो अगर हम इस म्यूज़िक के ज़रिए या अच्छी वीडियो, जो व्लॉगर्स हैं आज माशाल्लाह वो अपना बड़ा एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, वो जो खूबसूरती को दिखाते हैं थोड़ा माइंड्स को चेंज करने के लिए, कि लोग अब जो है ना वो जुल्म और सितम और बर्बरियत वो देख देख के लोग भी कुछ तंग पड़ चुके हैं। बार बार वही चीज़ ना, जो हमारी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे मुल्क में खूबसूरती है, हमें वो दिखानी चाहिए बार बार इंटरनेशनल मीडिया पे, और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो उससे मेरे ख्याल से एक बूस्टअप मिलता है और उससे कुछ करने की एनर्जी पैदा होती है। अपने आप को कमज़ोर शो कर करके, अपने आप को मरा हुआ शो कर करके। Point, but allow me to ask you something, Zuhaib. Well, some might argue that Kashmir is becoming a forgotten cause. Do you agree? Are you disappointed by that? लेकिन ये कि अल्लाह की ज़ात से कभी वो जो है ना महरूम नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। वो दिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये एक उम्मीद है और इस उम्मीद को कायम रखना चाहिए, कभी भी अपनी हिम्मत को और उम्मीद को ख़त्म नहीं करना चाहिए। Well, some might wonder if art is an effective tool to wield when the oppressor comes armed to the teeth and with an entire system of oppressive laws imposed to continue to persecute those who dare to protest in Kashmir. Do you think art is an effective medium for protest? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आर्ट से आप दिखाते हो ना, तो जब मीडिया पे जो चीज़ वो कहते हैं ना, जो हमारे उर्दू में एक मिसाल है, जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखाएंगे तो वो आगे ज़ाहिर है पता चलेगा। फिर तो जब दिखाएंगे ही नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा, वो आर्ट के ज़रिए ही करेंगे।
Well, pressure, censorship, violence, and intimidation are the price you pay even for cultural resistance in Indian occupied Kashmir. What are the options that the Kashmiris have today, for instance, when they see the heroic steps and actions taken by their brothers in occupied Palestine? मतलब बिल्कुल हम जितने भी हम कश्मीरी हैं जब ख़ास करके फ़लस्तीन को देखते हैं, जब वहाँ पे उजड़े हुए घर देखते हैं, माँओं बहनों को रोता हुआ देखते हैं, तो लाजमी बात है हमें अपनी भी याद आती है, क्योंकि फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों बहन भाई हैं उस तरीके से, दोनों पे सेम सिचुएशन है। हम भी ग़ुलाम बन चुके हैं और फ़लस्तीन भी ग़ुलाम बन चुका है। तो जब उनके वो हालात देखते हैं तो डेफिनेटली हमें मतलब बहुत दुख होता है, दिली तौर पे रंजिश पहुंचती है उस चीज़ की। Right. An observer confirms that Indian nationalists use the Kashmir conflict to power their views. When someone is killed in Kashmir, the media always make it a national issue through depicting Kashmiris as violent, and the media tries this way to manage to dehumanize the Kashmiris. Why is the Western media virtually silent about this, Zuhaib? देखें, इसमें ये है ना कि कुछ जगह पे मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, और वहीं पे जो मैंने पहले बात की थी ना कि हमें हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मीडिया का माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा एक किरदार है कि कुछ जगह पे वो अपना पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है और वहीं पे कुछ जगह पे वो गलत चीज़ें दिखा रहा है। ऐसी चीज़ें वो मीडिया दिखा रहा है कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हैं ही नहीं सिरे से, लेकिन उनको क्रिएट करके वो बता रहा है। तो ये इसमें बहुत सारी जगहों पे मीडिया की भी गलती है, जहाँ पे वो अपनी टीआरपी के लिए, अपनी रेटिंग के लिए कश्मीरियों को दहशतगर्द कहीं पे बना देते हैं, कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा सफाकाना जुल्म दिखा देते हैं। तो एक जो है ना वो बहुत हाइप क्रिएट कर दी जाती है, वो भी इतनी नहीं बात ना। तो ये मीडिया को चाहिए कि जो एक सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो दुनिया के सामने लेके आएँ, और जो एक्चुअल हकीकत है वो आवाम को दिखाई जाए। तो वो क्योंकि हमारी आवाम जो देखती है उस पे यकीन करती है, जो सुनती है उस पे यकीन करती है। तो इसमें मेन किरदार मीडिया का है कि वो एक अपने मुकम्मल ज़राए से, अथेंटिक ज़राए से वो चीज़ मालूमात इकट्ठी करें, उसके बाद उसको नशर करें, क्योंकि हमारी जो जितनी भी आवाम बैठी हुई है ना, उसने देख के ही आगे अमल करना है, तो वही सोचना है। यही मैं कहना चाहूँगा। Superb. What is very interesting, Zuhaib, yet confusing at the same time, particularly through these horrific economic conditions, is that you don't charge a penny for performing and producing a song. Why? And why not performing other music genres and songs? इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि मैंने देखें अपने वतन के लिए पढ़ रहा हूँ ना, अपने वतन की मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर मेरे खून में है, मैं बाय ब्लड कश्मीरी हूँ, लेकिन पाकिस्तान से भी मेरी मोहब्बत का तकाजा उतना ही है जितना कश्मीर से है, क्योंकि पाकिस्तान के बग़ैर भी मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये मैं कहना चाहूँगा कि वतन से जब आप मोहब्बत करो ना तो वो पूरी करो। अगर मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ तो क्या मैं उससे पैसे मांगूंगा किसी चीज़ के? किसी भी अपनी किसी बंदी से मोहब्बत करता हूँ, अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, तो उसके मैं उससे पैसे मांगूंगा? कभी भी नहीं मांगूंगा। तो मैं अपने वतन के लिए जो भी है वो मैं अपनी जेब से करूँगा, मरते दम तक अपनी जेब से करूँगा। और हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे इसके पैसे किसी जगह से नहीं मिलते। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मैं ऑफिशियली काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे तराने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ पढ़े। आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना मैंने पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान का कौमी तराना जो 14 अगस्त को कल रिलीज़ हुआ है, आज़ाद कश्मीर की तरफ से, आज़ाद कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, वो मैंने तराना पढ़ा है आज़ाद कश्मीर की तरफ से। तो इसके जो मुझे चार्जेस वगैरह मिलते हैं वो मैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं चैरिटी करता हूँ। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ करता हूँ और कैसे करता हूँ, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। तो ये है कि अगर मैं जब पैसे लेना शुरू कर दूंगा ना, जो मेरी इज़्ज़त है या जो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सोचता हूँ कि वो कम हो जाएगी। तो जब तक मेरे में दम है, मेरा काम चल रहा है,
मैं इस चीज़ का कभी चार्ज नहीं करूँगा, क्यों वो मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, वो मेरी जो है ना वो बरकत ही ख़त्म हो जाएगी। जो मैं दिल से पढ़ता हूँ या दिल से जो चीज़ करता हूँ ना, उसमें एक लालच आ जाएगी, तो वो मैं लालच अपनी मोहब्बत में कभी भी नहीं लाना चाहता। Bless you. Yes, it is the world that is in darkness and shall always be the mission and responsibility of people and artists like yourself, Zuhaib, to tell the world about the agonies of Kashmir and its people and to kindle hope to the people, encouraging them to stay steadfast in their struggle against the suppression. Zuhaib Zaman, Kashmiri patriotic singer, thank you very much for being a voice for the voiceless or the unheard voices of Kashmir. Thank you so much. Always a pleasure to have you. ودائما الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. للتفاعل أكثر تابعونا على صفحات السوشيال ميديا، وحتى نلتقي من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.